Good evening friends, myself Sumati, welcome to my channel Edutainment. Friends, previously we have already discussed about 4 approaches of constructivist approach like self-learning, peer learning, collaborative and cooperative learning. Today I am going to discuss with you 5E instructional model. Because in constructivist theory or constructivist approach there will be two theory or two model. One is 5P instructional model and second one will be your icon model. Icon model we will discuss later. Now we are going to discuss about 5E instruction model. Friends, here 5E indicates different 5 E, like for each E there will be a phrase or term which indicates the 5 phases, and it is an instructional model because instructional model is that model by use of those model teacher will instruct the student. Okay, so as 5P model it is very important, we can say that topic for your B.Ed, because 5P model will be helpful, not only helpful for your exam but also it will be very helpful for your teaching profession, because when you will be a teacher then it will help you in preparing your lesson plan, daily lesson plan, and it will give you a great idea how to manage your classroom or how to complete a effective lesson within a 45-minute class hour time. So if you will get any doubt regarding my discussion, you can raise your questions on the chat box, because it is very important for you, and please watch this video patiently. Okay, let's see. The 5P model is based on the constructivist theory to learning, which suggests that people construct knowledge and meaning from experiences. दोस्तों, ये पॉइंट बोल रहा है कि 5P मॉडल जो है वो तो जैसे कि हमको पता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है उसका एक अप्रोच है 5P मॉडल, एंड जैसे कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ही बेसिकली बोलता है कि बच्चा जो है वो खुद का नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा बाय द हेल्प ऑफ with their past knowledge or prior knowledge. So that's why it says about 5P model also based on the constructivist theory, and we suggest that people construct knowledge and meaning from their experiences. By understanding and reflecting on activities, students are able to reconcile new knowledge with previous ideas. Friends, here the point is, if one student will getting the understanding about any concept, if that student can reflect on that activity, then students are more able to reconcile new knowledge with previous knowledge. Means अगर बच्चा कुछ टॉपिक का ऊपर जो नॉलेज होता है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है और खुद का रिफ्लेक्शन दे सकता है, तो वो बच्चा क्या करने के लिए एबल हो जाएगा कि उनका जो करेंट नॉलेज है उसको लिंक करने के किसके साथ, प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करना बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए, अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग होगा. अगर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दैट स्टूडेंट टू मेक ए, वी कैन से दैट कनेक्शन बिटवीन प्रायर एंड करंट नॉलेज. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वर्वली जोब्राक, educational movements such as inquiry based learning, activity learning, experiential learning, discovery learning and knowledge building are variations of constructivism. Joubrak, according to Joubrak, on educational, like in educational movement, means education का जो movement हो रहा है उसमें different kinds of learning है. For example, जैसे कि inquiry based learning हो गया हमारा, active learning हो गया, experiential learning हो गया, डिस्कवरी लर्निंग हो गया. ये सब जो लर्निंग है हमारे एजुकेशनल मूवमेंट से, वो वी कैन से दैट दोज लर्निंग्स आर द वेरिएशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, बिकॉज with the help of those learnings student can construct their own knowledge by the help of their past experience, and we say it is says about only the constructivism. So if we can say that those learnings reflects upon the constructivism characteristic. In the classroom, constructivism requires educators to build inquiry, exploration and assessment into their instructional approach. In many ways, this means the teacher plays the role of a facilitator, guiding students as they learn new concepts. Friends, 5P model is, we can say that, is very much important or useful for those students who are in beginner or who are beginning the new concept. So in that case, for starting the new concept, the role of teacher will be
as a facilitator, means teacher will facilitate the student at that time. Teacher will guide them, teacher will give we can say the direction, teacher will help as a helper, as a friend. So role of teacher will be passive, like as a helper, but the role of student will be active, because we have already discussed it is the approach of constructivism, and constructivism says that learning will be active and student will be active in this process. The findings of Atkin and Karplus directly inform the creation of the 5P model, which focuses on allowing students to understand a concept over time through a series of established steps or phases, and those phases. Friends, you can get questions from here like 5P model, founder of 5P model, that is you can write Atkin and Karplus. And 5P model, as I have discussed with you, 5P model indicates 5 different E, and each E have some value, some term, and or we can say that here 5 steps are there in our teaching or instruction. Like first E indicate engage, second E indicate explore, third E is explain, and fourth is elaborate, and last one is evaluate. So friends, you can get question from here like in like university or OTET, like if there means 5P अगर है यहाँ पर डिफरेंट 5 E है तो क्वेश्चन आ सकता है अगर कि सेकेंड स्टेप क्या, सेकेंड E का मीनिंग क्या है, मतलब जैसे कि हमारा सेकेंड E यहाँ पर हो गया एक्सप्लोर, या फिर आ सकता है फोर्थ E, मतलब किसी की भी E का वैल्यू मतलब मीनिंग पूछ सकता है, टर्म पूछ सकता है। तो ये जो 5 स्टेप है और 5 फेजेस है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट एंड इवैल्यूएट, यू शुड कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज। सो लेट्स सी फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, एंगेज स्टेप। जैसे कि एंगेज मतलब बच्चे को एंगेज करना, मतलब जो भी लर्निंग एक्टिविटी है आपके क्लासरूम में तो कैसे आप लोग बच्चे को एंगेज करोगे। तो लेट्स सी, इन द फर्स्ट फेज ऑफ द लर्निंग साइकिल द टीचर वर्क्स टू गेन an understanding of the students' prior knowledge and identify any knowledge gaps. Friends, जब भी टीचर एक क्लासरूम को जाता है तो उसका फर्स्ट ड्यूटी ये है कि उनको टीचर को ये मतलब फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा जो है उनके क्लासरूम में उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है एंड उसका प्रीवियस नॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग है, और जो लर्निंग गैप है, नॉलेज गैप है, वो क्या है। आफ्टर नोइंग दैट द टीचर कैन प्रोसीड, yes or no? So first, whenever a teacher will go to the class, the first duty will be to find out what is the understanding level of the student, what is the prior knowledge of the student, and identify what is the, we can say, knowledge gap of the students. Okay, it is also important to foster an interest in the upcoming concepts, so students will be ready to learn. Obviously, in upcoming concepts, maybe new concept will be there, and whatever the new concept we will get face in next class or upper class, that will have any connection with the previous knowledge. So it will help the student and teacher also. Teachers might task students with asking opening questions or writing down what they already know about the topic. This is also when the concept is introduced to students for the first time. दोस्तों देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर टीचर कुछ, अगर जो शिक्षक जो होते हैं वो अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो अगर नया कंसेप्ट हो या फिर कुछ पुराना कंसेप्ट भी हो तो क्लासरूम में क्या होता है कि फर्स्ट ड्यूटी ये होता है कि टीचर का वो फर्स्ट तो उनका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लेवल को कितना है वो जानने का, और उसके बाद ये पता लगाना कि उनका जो नॉलेज गैप क्या है, और उसका जो बच्चे का जो प्रायर नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज पास्ट एक्सपीरियंस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, उसके बाद टीचर का रोल ये आता है कि वो जो नॉलेज ये जो मैं बोली पॉइंट इसको सब निकालना है टीचर का, तो ये सब कैसे निकालेंगे, कुछ तो प्रोसेस होगा। तो एंगेज फेज बोल रहा है कि टीचर क्या कर सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा ना मतलब प्रीवियस नॉलेज को लेके कुछ क्वेश्चन कर सकता है, चेक कर सकता है कि पता है या नहीं, या फिर उनको एक अगर नया कंसेप्ट है तो उनको कुछ ऐसे कंसेप्ट को दे के एक पेपर दे के बोल सकते हैं कि इस कंसेप्ट के बारे में अगर आप लोग को कुछ पता है तो लिख लो, या फिर कुछ भी जो भी माइंड को आ रहा है तो लिख लो। सो देट क्या होगा कि स्टूडेंट का माइंड में जो होगा वो आइदर प्रीवियस नॉलेज से होगा या फिर न्यू कॉन्सेप्ट का उनका डेली लाइफ रिलेटेड कुछ होगा। अगर स्टूडेंट को कुछ पता होता तो स्टूडेंट लिख लेंगे।
तो एंगेज फेज बोल रहा है कि जो प्रीवियस नॉलेज और नॉलेज गैप जो टीचर शुड नो by the help of asking questions or giving any task or engaging them in any kind of activity. I hope you all are clear about engage phase because each phase is very much important to understand because it will help you in writing your we can say the lesson plan. If you will not understand this thing, then you will not able to write the lesson plan properly. So second phase about explore. During the exploration phase, students actively explore the new concept through concrete learning experiences. They might be asked to go through the scientific method and communicate with their peers to make observations. This phase allows students to learn in hands-on way. So ये क्या होता है कि सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में टीचर ये पता उनको लग गया कि क्या नॉलेज गैप है, क्या प्रीवियस नॉलेज है बच्चे का, कितना वो उनका स्ट्रेंथ क्या है, ये सब हो गया फर्स्ट फेज में, मतलब एंगेज फेज में। सेकेंड फेज जो आ रहा है वो है एक्सप्लोर, और ये बोल रहा है कि एक्सप्लोर फेज जो है इसमें टीचर क्या करेगा कि स्टूडेंट को एक वी कैन से दैट गिव द अपॉर्चुनिटी, मीन्स एक थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो सकता है, थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, थ्रू ऑब्जर्वेशन हो सकता है, जो भी नॉलेज उनका है वो उसको एक्सप्लोर करेगा स्टूडेंट। यहाँ पर एक बात याद रखो, 5P मॉडल में एक्सप्लेन फेज को छोड़ के कहीं भी फेज में टीचर का ज़्यादा रोल नहीं है। एक्सप्लेन फेज में भी टीचर का रोल ज़्यादा नहीं है, बट इन केस इफ द कॉन्सेप्ट विल प्योरली टोटली न्यू फॉर द स्टूडेंट, that case only the role of teacher will be more. But rather than other in 5E like other 5 stage or all 5 stages, the role of student will be more. Okay, means here बच्चे को ही सब कुछ करना है, टीचर ओनली गाइड करेगा। Exploration experiences provide students with a common base of activities within which current concepts, that is misconceptions, processes and skills are identified and conceptual change is facilitated. Learners may complete lab activities that help them use prior knowledge to generate new ideas, explore questions and possibilities, and design and conduct a preliminary investigation. Means here the role of student will to explore the knowledge. So for exploring the knowledge, student can do hands-on activity, we can say that do observation, can use the lab also, we can say that they can conduct their investigation also. So those are the, it says about like through which process student will explore the knowledge. Once interest has been generated, the student is ready to begin exploring the concept. Means after doing all the things, the student's interest will be developed. Then after interest will be generated, now student will be ready to begin exploring the concept. At this stage, the teacher provides a hands-on activity. Students investigate a problem and begin to pose real questions, develop hypotheses and test certain variables. The key concepts in the topic are identified and students develop the skills needed to test these. Means what happens here, मीन्स हियर जो बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है फर्स्ट, उसके बाद इंटरेस्ट होने के बाद वो रेडी हो जाते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। एंड फॉर द एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट क्या करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम अगर होता है या फिर जो क्वेश्चन उनके माइंड में है उसको पोज मतलब रेज करते हैं, क्वेश्चन हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, जो भी उनका माइंड में आता है वो यहाँ पर डेवलप करते हैं। At this stage, students are refining their laboratory skills as well as their understanding of the scientific method. Students work cooperatively in groups and are provided time to reflect on the results of their investigation. So next phase will be explain phase. Means first phase में क्या हुआ मैं थोड़ा रिकॉल कर देती हूँ so that you can connect these things. First phase में ये हुआ टीचर का रोल होगा कि teacher should identify the prior knowledge of the student. Teacher should find out the knowledge gap of the student. So for that means for finding the knowledge gap or for finding the prior knowledge of the student, teacher should do like teacher should pose the questions, different kinds of questions, or teacher will try to engage the students by asking questions, by providing like any through communication skill or teacher can ask them for writing all those things whatever they know about that concept.
So through this method, or any teacher can do also, or teacher can conduct also any kind of activity. So through those process, teacher can get the idea about their previous knowledge, and teacher will able to, we can say that, engage the students effectively. Next is explore stage says about, here student role is more important. Student will explore their knowledge, and how they will explore? By the help of any activity, hands-on activity or lab or observation or investigation or posing questions or developing their hypothesis or different kinds of developing the investigation also. So here student, by using those processes, student can explore their knowledge. Now let's come to third point, that is third phase, explain. Let's see. This is a teacher-led phase that helps students synthesize new knowledge and ask questions if they need further clarification. जैसे कि मैं बोली थी पहले से कि एक्सप्लेन फेज ही एक ही फेज है जिसमें टीचर का रोल रहता है, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे दूसरा फेज को तो उसमें टीचर का रोल कम रहता है और एक्सप्लेन फेज में टीचर का रोल ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट प्योरली न्यू होता है तो बच्चे के लिए दिक्कत हो जाता है, इसलिए टीचर का एक्सप्लेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. फॉर द एक्सप्लेन फेज टू बी इफेक्टिव, टीचर्स शुड आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर व्हाट दे लर्न ड्यूरिंग द एक्सप्लोर फेज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इन ए मोर डायरेक्ट मैनर. ये बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन फेज में टीचर जब कुछ भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने जाते हैं, क्लास में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उससे पहले टीचर का रोल ये होता है कि टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस. एक्सप्लोर फेज रे बच्चे क्या किया, मतलब टॉपिक को लेके बच्चे एंगेज भी हुए और एक्सप्लोर भी हो चुके हैं. तो एक्सप्लेन फेज में टीचर का रोल ये है कि जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के पहले से, मतलब बच्चे के आगे टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन देना है उससे पहले बच्चे को ये पूछना कि वो टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर फेज में क्या किए, क्या क्या आइडिया वो एक्सप्लोर किए. द 5P इंस्ट्रक्शनल मॉडल, ओके, ए लर्निंग साइकिल अप्रोच फॉर इंक्वायरी बेस्ड साइंस टीचिंग. ओके, मीन्स ये बोल रहा है कि 5P इंस्ट्रक्शनल मॉडल जो है वो एक लर्निंग साइकिल अप्रोच है, एंड वी कैन से दैट फॉर इंक्वायरी बेस्ड साइंस. मीन्स बच्चे यहाँ पर इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच यूज करके पढ़ाई करेंगे. दिस इज ऑल्सो व्हेन टीचर्स यूटिलाइज वीडियो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अदर एड्स टू बूस्ट अंडरस्टैंडिंग. मीन्स here in explanation phase, teacher can use video, can use computer software or other any kinds of teaching aids for boosting their understanding of the students. The explanation phase focuses students' attention on a particular aspect of their engagement and exploration experiences and provides opportunities to demonstrate their conceptual understanding, process skills or behaviors. Means यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्सप्लेनेशन फेज होता है वो ज़्यादातर फोकस करता है कि स्टूडेंट का जो अटेंशन है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके, एंड वो जो कॉन्सेप्ट को जो अटेंशन भी है वो किस एस्पेक्ट में है कि स्टूडेंट का जो एंगेजमेंट था और एक्सप्लोरेशन था, दो फेज जो पहले से गया उसका एक्सपीरियंस है. मतलब एंगेजमेंट फेज में जो किए स्टूडेंट, एक्सप्लोरेशन फेज में जो एक्सप्लोर किए, वो जो दोनों का एक्सपीरियंस स्टूडेंट गेन किए उसका रिफ्लेक्शन हम बोल सकते हैं टीचर टेस्ट करेगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन फेज में. दिस फेज ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर्स टू डायरेक्टली इंट्रोड्यूस ए कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और स्किल. लर्नर्स एक्सप्लेन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द टीचर और द करिकुलम में गाइड देम टू हैव ए डीपर अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस फेज. दोस्तों, जो एक्सप्लेनेशन फेज है उसमें बोथ टीचर एंड स्टूडेंट का इक्वल रोल रहता है. मतलब अगर नेसेसरी है तो टीचर कैन एक्सप्लेन, टीचर कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक डायरेक्टली, बट अगर नेसेसरी नहीं है, मतलब टॉपिक ऐसा है कि जो प्रीवियसली नॉलेज को प्योरली पूरा रिलेटेड है एंड स्टूडेंट हैव मच मोर नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक, देन नो नीड टू डिस्कस बाय द टीचर. मीन्स यहाँ पर जो टीचर का रोल ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट को पढ़ के प्रीवियसली आए हैं. तो यहाँ पर क्या होगा कि टीचर विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू एक्सप्लेन. मीन्स स्टूडेंट जो भी उनको पता है प्रीवियसली, एक्सप्लेनेशन फेज में वो स्टूडेंट उसको एक्सप्लेन करेंगे. और अगर न्यू कॉन्सेप्ट होगा तो ये रोल टीचर का होगा कि वो डायरेक्टली टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं. So next phase is elaborate.
The elaboration phase of the 5P model focuses on giving students space to apply what they have learned. This helps them to develop a deeper understanding. Teachers may ask students to create presentations or conduct additional investigations to reinforce new skills. This phase allows students to cement their knowledge before evaluation. to cement their knowledge before evaluation. एलाबोरेट फेज में क्या होता है, जैसे कि एंगेजमेंट में बच्चे एंगेज हुए, एक्सप्लोर में बच्चे उसका नॉलेज एक्सप्लोर किए थ्रू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, एंड एक्सप्लेनेशन फेज में आइदर टीचर एक्सप्लेन कर रहा है या फिर स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रहा है. अगर स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रहा है तो उनका जो 2 फेज में था एंगेज एंड एक्सप्लोर फेज में जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करके एक्सप्लेन कर रहा है. एलाबोरेट फेज बोला है जो भी कॉन्सेप्ट अभी स्टूडेंट माइंड में एक कॉन्स्ट्रक्ट हो गया कॉन्सेप्ट, तो उसको वी कैन से दैट कैसे अप्लाई करके लर्न करेंगे. मतलब जो भी वो थ्योरिटिकल हुआ या फिर थ्रू एनी एक्टिविटी हुआ, वो पढ़ाई हो गया, अभी तो हो गया, लेकिन वो क्या करेगा एलाबोरेट फेज में, वो टीचर क्या करेगा बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट दे सकता है, कुछ प्रेजेंटेशन दे सकता है, जो भी हमारे पिछले फेजेस में हुआ था, मतलब एक्सप्लेन फेज में हुआ था जो, और एक्सप्लोर फेज में हुआ था जो, और न्यू कॉन्सेप्ट ऑल्सो. तो अभी तो हो गया सब. उसके बाद एलाबोरेट फेज में टीचर का रोल ये है कि टीचर वो कितना स्टूडेंट को पता है वो जानने के लिए यहाँ पर टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन देगा, कुछ प्रोजेक्ट देगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेगा. ये सब न्यू स्किल कितना है, नॉलेज कितना वो एक्वायर किए है, ये सब जानने के लिए एलाबोरेट फेज में टीचर का रोल ये होता है. टीचर्स चैलेंज एंड एक्सटेंड स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स. यहाँ पर टीचर क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं स्टूडेंट का जो स्किल एंड नॉलेज होता है. थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस द स्टूडेंट्स डेवलप डीपर एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, मोर इन्फॉर्मेशन एंड एडिक्वेट स्किल्स. स्टूडेंट्स अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बाय कंडक्टिंग एडिशनल एक्टिविटीज. स्टूडेंट जो भी उनको पता है वो क्या करते हैं, उनका जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो अप्लाई करते हैं इन वी कैन से दैट कंडक्टिंग एडिशनल एक्टिविटीज. जो भी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हुआ है उसको छोड़ के कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू में उनका अंडरस्टैंडिंग जो है उसका अप्लाई करते हैं. सो लास्टली इवैल्यूएट फेज. 5P model allows for both formal and informal assessment. During this phase, teachers can observe their students and see whether they have a complete grasp of the core concept. It is also helpful to note whether students approach problems in a different way based on what they learned. Other helpful elements of the evaluate phase include self-assessment, peer assessment, writing assessment and exams. फ्रेंड्स, ये जो evaluate phase है ये तो पता है कि evaluate का मतलब यहाँ पर टीचर असेस करेगा स्टूडेंट को. स्टूडेंट भी असेस कर सकते हैं उनका खुद का स्टडी और लर्न, जो भी कुछ कॉन्सेप्ट का लर्न किए हैं वो. तो यहाँ पर बोल रहा है कि 5P मॉडल की टीचर कैन असेस द स्टूडेंट्स बाय द एनी काइंड ऑफ टेस्ट ऑल्सो. इट कैन बी सेल्फ असेसमेंट, मतलब बच्चे खुद का भी असेसमेंट कर सकता है. इट कैन बी पीयर असेसमेंट, बच्चे जो दोस्तों को बीच में वो भी असेस कर सकते हैं. राइटिंग असेसमेंट हो सकता है, ओरल असेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टोटल प्रोसेस खत्म होने के बाद टीचर यहाँ पर बच्चे को असेस करेगा, सो दैट ये पता चलेगा टीचर कि स्टूडेंट क्या ग्रास्प किए और क्या नहीं किए नॉलेज. The evaluation phase encourages students to assess their understanding and abilities and provides opportunities for teachers to evaluate student progress toward achieving the educational objectives. Means सब कुछ खत्म होने के बाद टीचर ये कर सकता है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग से फ्रेम होगा, क्योंकि आप लोग जब कॉन्सेप्ट एक पढ़ाएंगे, एक टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उसका कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होगा. मतलब ये टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट क्या सीखेंगे, मतलब स्टूडेंट क्या करने के लिए एबुल हो पाएंगे. मतलब फॉर एग्जांपल एसिड बेस पढ़ा रहे हो, तो एसिड बेस पढ़ाने के बाद स्टूडेंट एटलीस्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं एसिड क्या है, बेस क्या है, एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है उनका, एसिड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर एग्जाम्पल है कुछ भी. तो ये जो ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा कि मैं आज एसिड बेस पढ़ाऊंगी, उसके बाद स्टूडेंट ये सब मुझे बोल सकते हैं, पढ़ाने के बाद कह सकते हैं, मतलब ये इसके बारे में जो नॉलेज है स्टूडेंट ग्रास्प कर सकते हैं. तो ये वो होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सो ये बोला कि इवैल्यूएट फेज में क्या होता है कि टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होगा स्टार्टिंग से जो टॉपिक पढ़ा रहा है 5P मॉडल यूज़ करके, तो ये फेज में वो देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ और नहीं हुआ. कैसे करेंगे, जैसे कि बोले कि वो पीयर असेसमेंट में हो सकता है,
सेल्फ हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, ओरल हो सकता है, एनी काइंड ऑफ, you can say that any kind of assessment you can use and you can evaluate. So this is about 5P model, that means 5 stages of this 5P model. Let's see its application and effectiveness. The 5P model is most effective when students are encountering new concept for the very first time because there is opportunity for a complete learning cycle. ये बोला है कि जो 5P मॉडल होता है वो जो भी बच्चे होते हैं जब न्यू कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत ही मतलब यूजफुल, वी कैन से दैट ये मॉडल बहुत ही यूजफुल है क्योंकि ये एक टोटल कंप्लीट लर्निंग साइकिल है, मतलब फर्स्ट एंगेज से लेकर इवैल्यूएट तक पूरा कंप्लीट लर्निंग साइकिल है. अकॉर्डिंग टू को क्रिएटर रोजर W.Y.B, the 5P model is best used in a unit of 2 to 3 weeks in which each phase is the basis for one or more distinct lessons. Using the 5P model as the basis for a single lesson decreases the effectiveness of the individual phases due to shortening the time and opportunities for challenging and restructuring of concepts and abilities for learning. Bybee explains. Okay, according to Bybee क्या बोल रहे हैं कि जो 5P मॉडल होता है वो हम बोल सकते हैं सिंगल लेसन के लिए ज़्यादा मतलब ये इफेक्टिवनेस जो होता है उसको डिक्रीज करता है क्योंकि जो इंडिविजुअल होते हैं हमारे क्लासरूम में ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम, मतलब क्लास तो 45 मिनट का होता है, तो क्या करते हैं ना हम ये जो मेथड को ज़्यादातर हम पूरे यूनिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है. And if too much time is spent on each phase, the structure is not as effective and students may forget what they have learned. ये बोल रहा है कि अगर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फेज में, मतलब ईच फेज में अगर ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करते हैं तो फिर ये क्या होता है कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है स्टूडेंट के लिए. एंड जो बच्चे जो ये फेज में पढ़ रहे हैं अगर ज़्यादा टाइम हम यूज करेंगे तो क्या होगा ना कि वो भूल जाएंगे, जो भी पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे. सो ये कुछ था एप्लीकेशन एंड इफेक्टिवनेस, मतलब 5P मॉडल कितना इफेक्टिव है क्लासरूम में. ओवरऑल मैं आप लोग को बोल दिया हूँ. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ रेज योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप लोग को मैं अपडेट दे पाऊँगी कौन सा सब्जेक्ट में नेक्स्ट वीडियो कौन सा वीडियो में डालूँगी. So 5P model is very important. Please read thoroughly and if you have any doubt then please ask me. Thank you.